students, I once again welcome you all on my YouTube channel, and in today's video we will move one step ahead in the ionic equilibrium. Okay, I have made the first video on ionic equilibrium in which I have taken the introductory part in which I have explained you about what is equilibrium, what do we mean by chemical equilibrium, then the different types of the electrolytes, what are electrolytes, what are their different types. Also we have seen about the different types of acids and the bases, strong acid, strong base, and we have seen about the non-electrolytes also, and some concepts given by different scientists about acids and bases. Okay, so all these we have seen in the last video. Those who have not watched my previous video on ionic equilibrium, please do watch it so that it will be easy for you to understand this video in a more better way. Okay, so let's start with today's video. Let me share my screen. So in today's video, we will be dealing with the ionization of weak acid and weak bases, then equilibrium constant, dissociation constant of weak acid and weak bases, Ostwald's dilution law for weak acid and weak bases, and we will also see some numericals on it. Okay. So first, let us move to our first topic, that is ionization of acids and bases. Okay. We already know that the acids can be classified into strong acid and weak acid. Similarly, the bases are classified into strong base and weak base. Now here we have to study about the ionization of acid and bases. Ionization का मतलब क्या होता है? Ion formation capacity. Ions कितने form होंगे? That is known as the ionization. तो अब ये जो acids और bases है, वो कितने % से dissociate हुए, कितने परसेंट में से उनके आयंस फॉर्म हुए, ये डिसाइड करेगा कि उनका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कितना हो रहा है. ओके, नाउ दिस डिसोसिएशन विल डिसाइड whether the acid is a strong acid or a strong base, or whether the base or it is a weak acid or a weak base. Dissociation अगर complete है means it is a strong acid or a strong base, and if the dissociation takes place in a partial way मीन्स अगर पूरे मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स दैट इज अ partial dissociation, and such acids or bases are the weak acid or the weak base. ठीक है, this all we have seen in our last video. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिटेल में देखा था कि किस तरह से हम डिसोसिएशन स्टडी करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये डिसोसिएशन से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे अफेक्ट होते हैं और हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे मिलते हैं. ओके, सो let us see now let us move ahead, and now in this case, so this strong acid and strong bases, weak acid and weak bases, we all know that the strong acids completely dissociated water. मतलब अगर मैंने 5 molecules अगर suppose HCl के लिए हैं तो मुझे 5 H plus ions मिलेंगे और 5 Cl minus ions मिलेंगे. इसका मतलब क्या है कि वहां 100% dissociation हो रहा है. Okay, 100% dissociation is going on in the strong acids or the strong base की अगर मैं बात करूं, strong base like NaOH, तो NaOH के भी अगर मैं 10 molecules NaOH के water में add करती हूँ, then I will get 10 Na plus and 10 OH minus. Again, the dissociation is 100%. So such acids are called as, or such bases are called as the strong acid and the strong base. And the reaction with the water is an irreversible reaction. ठीक है, ये जो रिएक्शंस होती है जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है. वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है एक बार आपका आयन, आपने एक बार मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए वाटर में, कंप्लीटली आयनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद आपकी रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है. इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन के लिए हम कोई इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं कर सकते. लेकिन अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस. ओके, हमें इस चैप्टर में पूरी तरह से वीक एसिड और वीक बेसिस के डिसोसिएशन के ऊपर ही आगे स्टडी करनी है. सो वीक एसिड एंड वीक बेस हम किन्हें कहते हैं? जो कुछ ही क्वांटिटी में डिसोसिएट होते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रही हूँ कोई वीक एसिड या वीक बेस का, तो उसमें से कुछ 2 या 3 आयंस, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स विल ओनली गेट कन्वर्ट इनटू आयंस. ठीक है, मतलब 2 या 3 आयंस मुझे मिलेंगे और बाकी जितने भी रहेंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे. अब ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती.
कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं होती? बिकॉज जब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं इसको। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एसिटिक एसिड, ओके, दिस एसिटिक एसिड इज गेटिंग डिसोसिएटेड एज एसिटेट आयंस एंड H+ आयंस, ठीक है। अब ये जो डिसोसिएशन है दिस इज पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के लेती हूँ तो यहाँ मुझे स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज्ड होंगे, ओके। तो अब जब स्टार्टिंग में रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटेट एंड H+ आयंस, ये हो गई हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर से ये एसिटेट आयन और H+ आयंस जब आपस में रिएक्ट होके वापस से आपका एसिटिक एसिड बना रहे हो तो दैट इज अ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन मींस एसिटिक एसिड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटेट एंड हाइड्रोजन आयंस। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी फास्ट है, ओके। फास्ट रिएक्शन है इसका मतलब क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स, सिंस देयर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास है और यहाँ पर तो हमारा कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये तो जीरो है। तो इनिशियली आपकी रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब जब एक थोड़ा टाइम के बाद जब आपके यहाँ आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, अब ये एडिक्वेट आयंस यहाँ पर बन जाएंगे कि वो आपस में रिएक्ट होकर अगर एसिटिक एसिड बना सकते हैं, तो अब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, मतलब अब हमारी रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एसिटिक आयंस और हाइड्रोजन आयन ये अब आपस में रिएक्ट होके क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब अब हमारी रिएक्शन 2 वे में स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली जो स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन की फास्ट रहेगी और रिवर्स रिएक्शन की स्लो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी उतने आयंस बने नहीं है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन आपकी पिकअप लेगी, मतलब रिवर्स रिएक्शन की रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर एक पोजीशन ऐसी आती है जब यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल प्लस जितने भी आयंस है सभी का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैंने 10 स्टार्टिंग में लिए थे, तो अब अगर यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 5 एसिटेट आयंस एंड 5 H+ आयंस, मतलब ऑन बोथ द साइड अब आपका कॉन्सेंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट का सेम हो जाएगा। देन एट दैट टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाएगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो हो गया हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर इस आयोनिक इक्विलिब्रियम को मुझे कैलकुलेट करना है, ओके, मुझे दिया गई है कोई रिएक्शन एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस आयोनिक इक्विलिब्रियम, so to calculate that ionic equilibrium I will need some mathematical expression, and that mathematical expression is given as the equilibrium constant। उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो हमें मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करती है, ओके। अब we all know that equilibrium can be attained when the rate of forward reaction and reverse reaction becomes equal, and this equilibrium constant can be obtained for the chemical equilibrium by the law of mass action। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसे अब हमें डिराइव करने के लिए किसकी हेल्प लेनी होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसका जो रेट है, okay, the rate of chemical reaction at each instant is proportional to the product of concentration of all the reactants, okay। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो उसका जो रेट है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो जो रिएक्टेंट को आप आपस में कॉन्सेंट्रेशन से मिक्स कर रहे हो उनकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये सिंपल सा एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हम इससे रिलेट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट होगी ये किसके ऊपर डिपेंड है कि आपने रिएक्टेंट कितने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिए। जितने आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लोगे उतनी ही रिएक्शन
फास्ट हो जाएगी। ओके, जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा उतनी रिएक्शन फास्ट है। मतलब अगर सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C, तो अब ये जो रिएक्शन की स्पीड है, ये रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतने वो इजीली रिएक्ट होंगे, और जितना कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, क्योंकि कम रहे, कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट। अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ से हम रिलेट करते हैं इसको। 1 लीटर दूध है, ठीक है, हमें उसे मीठा करना है। ओके, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है कि हम एक मिल्क को वी हैव टू रिएक्ट इट विद द ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन हम ग्लूकोज डालते वक्त हम डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं डालेंगे, ग्लूकोज को सोल्यूशन फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने 2 सोल्यूशंस बनाए, एक को कॉन्सेंट्रेटेड बनाया और दूसरे को डाइल्यूट बनाया। कॉन्सेंट्रेटेड बनाया मतलब क्या, कि सपोज मैंने 1 कप ऑफ वाटर में मैंने 3 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिए, वो मेरा हो गया एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। दूसरे इसमें मैंने 1 कप ऑफ वाटर में हाफ स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, ये हो गया मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन। अब ये दोनों सोल्यूशंस में से कौन सा सोल्यूशन उस मिल्क को जल्दी मीठा करेगा, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रिएक्शन फास्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी इंस्टेंट हो, वो पहला पॉइंट हो जहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, या बीच का पॉइंट हो, या कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पर स्पीड जो है रिएक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, सो this is what the law of mass action says. It says that the rate of a chemical reaction at each instant sorry at each instant is proportional to the product of concentration of all the reactant. उसमें जितने भी रिएक्टेंट है उनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो उसका रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, सो सपोज अगर ये रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C, यहाँ पर एक A कॉन्सेंट्रेशन, B का B कॉन्सेंट्रेशन। So agar if we apply the law of mass action, then according to the law of mass action, the rate of this reaction, rate means speed, rate of this reaction will be directly proportional to the product of, product means multiplication, so product of concentration of all the reactant. अब यहाँ पर 2 ही reactant है तो हम दोनों का product लेंगे, so product of A and B. So the rate is directly proportional to product of A and product of B. Okay. So अब ये proportionality sign को हटाना है मुझे, so if I want to remove the proportionality sign, then I have to add some constant to it. So let us add one constant, that is suppose name it as K. So rate will be equals to K into concentration of A into concentration of B. ये जो equation है, this equation is called as the rate equation, and this K here is called as the rate constant, and this is known as the law of mass action, which is applicable to each and every reaction, चाहे वो irreversible reaction हो, चाहे वो reversible reaction हो, any type of the reaction follows the law of mass action. Okay, so keeping this in mind, we have calculated out the equilibrium constant Kc for the in class 11th. Okay, तो सपोज ये भी एक थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू हेल्प अस टू डिराइव द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो अब सपोज इफ आई एम टेकिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है, ये क्या है, इनके स्टाइकियोमेट्रिक रेशियोज। मतलब मैंने A के सपोज 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मोल्स लिए, सो 2 की जगह मैं ले रही हूँ A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, गिविंग मी C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ठीक है, अब सिंस दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये जो मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस D, उसको मैंने ले लिया फॉरवर्ड F रिएक्शन, और जो मेरी रिवर्स रिएक्शन है C प्लस D गिविंग B A प्लस B, इसको मैंने ले लिया B एज अ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये KF KB क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस रिएक्शन को सिंगल रिएक्शन ना कंसिडर करते, अब हम 2 रिएक्शंस कंसिडर करेंगे। मतलब मेरी पहली रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग मी C प्लस D, और दूसरी रिएक्शन है मेरी C प्लस D रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म A प्लस D। ठीक है, तो अब हम अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर, फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर भी और रिवर्स रिएक्शन के ऊपर भी,
तो क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट. सो इन दिस केस अगर मैं इसका फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखती हूँ तो रेट क्या बन जाएगा मेरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या कौन कौन से हैं, ए और बी. तो इनके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इंटू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ. ठीक है, इसको हम बोलेंगे के एफ. तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या बन गया, रिएक्शन rate of reaction will be equals to kf into concentration of A into concentration of B. अब ये जो ऊपर हम लोगों ने स्टाइकियोमेट्रिक रेशियोज लिए हैं ये इसलिए लिए हैं बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 2A मोल्स ऑफ कैपिटल A लिए हैं और B moles of capital B लिए हैं. Okay, so this is our rate of equation, rate of forward reaction. Then this is our rate of backward reaction. अब अगर मैं backward reaction लेती हूँ तो मेरे reactants क्या बन जाएंगे, C और D. So rate of backward reaction will be Kb into concentration of C into concentration of D. Now we know that कि at an equilibrium point these two rates are equal. जब equilibrium reach होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट सेम रहते हैं. मतलब ये रेट ऑफ एफ एंड रेट ऑफ बी विल बी इक्वल. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ एफ means kf into concentration of A into concentration of B will be equal to kb into concentration of C into concentration of D. अब ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको हमने एक साइड रख दिया और बाकी के टर्म्स को मैंने दूसरे साइड ले लिया. तो kf upon kb will be concentration of C into C upon D raised to the power D upon A into raised to the power A into B raised to the power B. ये बन जाएगा. अब सिंस दीज बोथ आर द कांस्टेंट क्वांटिटी तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला के मैंने एक कांस्टेंट दे दिया दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एट दिस कांस्टेंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हैज बिकम इक्वल. सो दिस Kc, the value of Kc is equals to concentration of C raised to the power C into concentration of D raised to the power D upon concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, सिंपल है. अब इसमें इसको डिफाइन करना है मतलब क्या करना होगा, इसी को डिफाइन करना है. ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, ये हो गया हमारा एक्चुअल हमारी जो इक्वेशन के हिसाब से ये फिलहाल हमारा है प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट. तो इसको मैं क्या बोलूंगी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, it is the ratio of the product to the ratio of the product of the reactant. This is known as the equilibrium constant. इसको और सिंपल वर्ड में डिफाइन किया हुआ है, the equilibrium constant K is equal to the ratio of rate constant of the forward and the reverse reaction and it can be expressed in terms of either concentrations or pressure. इसको प्रेशर में भी हम लोगों ने डिफाइन किया था बट इस चैप्टर में हम लोगों को प्रेशर की फिलहाल जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद मोस्ट ऑफ द एसिड्स which are generally liquid in form. Okay, so in this case this equilibrium constant is nothing but the ratio of product of concentration of the product to the concentration of the product of concentration of the reactant. Okay, so this is our equilibrium constant. Now let us come to the main topic. ये तो हो गया हमारा अब तक का रिवीजन पार्ट जो हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Now we will move to the actual ionic equilibrium and here we are going to study about the dissociation constant. वहां हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब हमने उसके कांस्टेंट को नाम दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. नाउ वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें हमको क्या देखना है, डिसोसिएशंस ऑफ आयंस. तो डिसोसिएशन ऑफ आयंस कब पॉसिबल है, जब हम वीक एसिड या वीक बेस को डिसोसिएट करेंगे. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट विद. ओके, सपोज वी विल कंसिडर एक वीक एसिड हम लोगों ने ले लिया. ठीक है, एक वीक एसिड जिसका नाम ले लिया मैंने HA. ठीक है, और एक और वीक बेस भी ले लिया
BOH। पर हम एक टाइम पर एक ही करेंगे, पहले हम देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, बाद में हम मूव करेंगे वीक बेस पे, ठीक है, सिंपल है बहुत। अब सपोज मैंने ले ली एक रिएक्शन HA, एक मेरा एसिड है, एसिड में मैंने HA क्यों लिया है, बिकॉज वी नो दैट एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H प्लस आयंस, तो इसलिए हम लोग एक H लिया है और एक A ले लिया, ओके। तो ये हो गया मेरा एसिड HE। अब ये एक वीक एसिड है, weak acid do not dissociate completely, it get dissociated only partially, so it is a reversible reaction. So now this HA weak acid will dissociate into H plus and A minus, okay, ये किसमें dissociate हो गया, H plus ions दे दिया इसने और A minus किसमें दिया है उसने, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एक्वियस, एक क्यू लिखने का मतलब मेरा क्या है कि एक्वियस मीडियम में, मतलब जब हम एसिड को वाटर से मिक्स कर रहे हैं, then we are getting the two ions H plus and A minus, ठीक है। अब हम इस पे लगाते हैं हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है वो क्या आता है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, H प्लस और A माइनस, और रिएक्टेंट है हमारा HA। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पर है H प्लस और A माइनस, तो दोनों के प्रोडक्ट को हम ऊपर ले लेंगे, डिवाइड बाय क्या लेते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दैट इज HA, तो अपॉन HA। तो ये हो गया हमारा acid dissociation constant Ka. Acid dissociation constant AA can be defined as the ratio of the product of concentration of the product to the concentration of the reactant, ठीक है। अब सिमिलरली हम बेस के लिए ले लेते हैं। बेस मैंने ले लिया सपोज BOH, अगेन यहाँ पर मैं OH इसलिए ले रही हूँ बिकॉज हम बेस किसे कह रहे हैं, the base is the substance which give OH minus in the water according to the Arrhenius theory। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ वीक एसिड एक सपोज करके ले लिया BOH। अब ये BOH when I'm going to dissolve it in water, it will get dissociated into B plus and OH minus, ये दोनों में डिसोसिएट होगा। तो अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बन जाएगा, अगेन इट विल बी अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, B प्लस और OH माइनस, your B plus and sorry this is your B plus and this is your OH minus। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऊपर में आ जाएगा एंड रिएक्टेंट विल गो इन द डिनोमिनेटर एंड thus we will get the dissociation constant for the weak base। इसको हम क्या कहेंगे, dissociation constant for the weak base Kd। okay, have you understood it till now? अब इन्हीं दो डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करके वी आर गोइंग टू डिराइव एन ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। नाउ ओसवाल्ड वाज एन साइंटिस्ट एंड ही एक्सप्रेस्ड द अरेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्वांटिटेटिवली। उसने इसको जो एसिड और बेस का कांसेप्ट अरेनियस ने दिया था उसको उसने क्या किया है, क्वांटिटेटिव वे में डिस्क्राइब किया है, जिसको हम ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ करके पढ़ रहे हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द we know that according to the Arrhenius theory, the acids are the substances which give H plus ions in water and base is the substance which gives OH minus ions in water. Okay, so we have already seen about the equilibrium constant for the weak acid and the equilibrium constant for the weak base। अब इसको हम लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बता रहा है वो हम देखते हैं। ओके, now we know that the equilibrium constant for the acid dissociation is given as Ka is equals to H plus into A minus upon HA। Now in this case यहाँ पे सपोज हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो एसिड लिया है वो सपोज 1 मोल लिया है। ओके, 1 मोल कितने इसमें डिसॉल्व किया है मैंने, VDM क्यूब में डिसॉल्व किया, मतलब V वॉल्यूम में मैंने 1 मोल ऑफ एसिड लिया है। ठीक है, अब सपोज क्या होगा, दिस इज अ वीक एसिड, तो ये पूरी तरह से तो डिसोसिएट होगा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो गए। तो सपोज हम लोगों ने ले लिया कि अल्फा मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं। आफ्टर एडिंग इन द वाटर द अल्फा मॉलिक्यूल्स आर सपोज गेटिंग, one second, let me take a pointer। So suppose if we consider that we have taken suppose
द अल्फा मॉलिक्यूल्स। ओके, अल्फा मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से डिसोसिएट हो गए और बाकी के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स रहे, मतलब सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स, तो अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सपोज 1 मोल में से डिसोसिएट हो गए। ओके, तो अब बचे हुए कितने हैं जो अनडिसोसिएटेड है, कितने मॉलिक्यूल्स है जो कि अनडिसोसिएटेड रहेंगे, दैट विल बी 1 माइनस अल्फा। ओके, so 1 minus alpha molecules will remain undissociated. Now let us keep these values over here. Okay, तो क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा HA का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा, we know that concentration is number of moles present in per volume of the solution। कोई भी हम वॉल्यूम में अगर कितने मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं वो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है। ओके, कि अगर मैंने 2 spoons of sugar in 1 glass of water and 1 spoon of sugar in 1 glass of water, which will be more concentrated? Yes, obviously the one which has 2 spoons of sugar। तो अब ये हमने कैसे डिसाइड किया कि 2 चम्मच 1 ग्लास पानी में, 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 चम्मच वाला। इसका मतलब क्या हुआ, कितने चम्मच कितने वॉल्यूम में ऐड किए, ये क्या हो गया उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है HA क्या है हमारा, HA हम लोगों ने क्या लिया है, एसिड लिया है। ओके, तो स्टार्टिंग का हमारा जो एसिड है दैट इज HA। अब ये जो HA है, HA इसमें से 1, ये बचा हुआ कितना है 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा मॉलिक्यूल्स तो डिसोसिएट हो गए, तो बचे हुए थे, स्टार्टिंग में हमने लिया था 1 मोल ऑफ HA जिसमें से अल्फा आयंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स बचे, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा कन्वर्ट हो गए और ये स्टार्टिंग में 1 था तो 1 में से अल्फा चले गए, तो बाकी के HA मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा को मैंने कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया, V वॉल्यूम में, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन V क्या बन गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा अपॉन V मोल्स पर डीएम क्यूब। ओके, ये लीटर में था इसलिए हम लोग डीएम क्यूब में है तो ये बन जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब। अब उसके बाद में H का कॉन्सेंट्रेशन और A का कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस और A माइनस किसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिसाइड होगा, कि कितने मॉलिक्यूल्स H प्लस के हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम और कितने मॉलिक्यूल्स A माइनस के डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम। तो अब हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ अल्फा मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए। ओके, मतलब 1 मोल था HA का जिसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए आयंस में, मतलब H प्लस आयंस कितने हैं अल्फा और A माइनस आयंस कितने हैं अल्फा। तो अब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन V। यस, अल्फा अपॉन V H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी अल्फा अपॉन V। अब ये दोनों इक्वेशंस को, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनको हम हमारी जो पहली रिएक्शन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी पहली रिएक्शन क्या थी, फर्स्ट रिएक्शन Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। तो अब यहाँ पर हम H प्लस की जगह अल्फा अपॉन बी रखेंगे, A माइनस की जगह भी अल्फा अपॉन बी रखेंगे और HA की जगह HA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, इसमें लेट अस सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिल जाएगा, H प्लस मतलब अल्फा अपॉन बी इंटू A माइनस इज अगेन अल्फा अपॉन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बी अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ये आ गया मेरा इतना इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू V विल बी V स्क्वायर इंटू, अब ये जो टर्म है आपका 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ये जब हम इसको अपॉन में लेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ V अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस, नाउ V और V ये जो है दोनों क्वांटिटीज ये क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो यहाँ पर दिस V और इसमें से एक V, मतलब ये स्क्वायर वाला V कट जाएगा एंड वी विल गेट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू D। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर Ka। ओके, so if C is the concentration, अगर हम लोगों ने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज ले लिया कि C हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कितने वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में, बट अब यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है 1 मोल, 1 मोल कितने वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में।
तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1/V। तो कॉन्सेंट्रेशन C मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/V। सो 1/V को अगर मैं C सब्सटीट्यूट करती हूँ तो इक्वेशन विल बिकम अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। नाउ Ka विल बिकम अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। बट दिस एसिड HA एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड है। तो वीक एसिड डिसोसिएट होता है बहुत ही कम प्रमाण में। तो अब अगर 1000 मॉलिक्यूल्स में से कोई एक आधा मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो रहा है, ओके, दिस इज अ वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। तो वीक एसिड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, और ऊपर से हमने कितना लिया है, सिर्फ 1 मोल लिया है, 1 मोल इन B लीटर्स ऑफ वाटर। सो नाउ दिस 1 माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पर बहुत ही छोटा है क्योंकि कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हुए। तो अब अगर मेरा सपोज मैंने आपको दे दिए, एक सिंपल ले लेते हैं कि मैंने आपको दे दिए, सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, ओके। उसके बाद मैंने आपसे उसमें से 1 रुपया मांग लिया, आपने मुझे 1 रुपया दे दिया। अब आपको तीसरे पर्सन ने पूछा कि कितना अमाउंट तुम्हारे पास, कितने पैसे पड़े, तो तुम क्या बोलोगे, थोड़ी ना बोलोगे 999, आप क्या बोलोगे, हाँ अराउंड 1000 रुपीज है मेरे पास। यस, मतलब उस बड़े से क्वांटिटी में से अगर मैं एक छोटी सी चीज निकाल लेती हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर अल्फा जो है वो बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू 1। सो सिंस इन दिस केस डिसोसिएशन इज वेरी वीक, अल्फा की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, और बहुत कम है इसलिए 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। तो अब अगर इस 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी नियरली इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बिकम Ka is equal to alpha square upon V और Ka is equal to alpha square into C। तो ये बन गई हमारी दो रिएक्शन विच इज नोन एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड। यहाँ पे हमने जो Ka लिया है, A डिनोट्स फॉर द वीक एसिड। जब हम इस Ka की जगह Kb लेंगे तब हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक बेस। ओके, अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस डिसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन अल्फा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आई विल कीप दिस अल्फा हियर एंड आई विल टेक दिस क्वांटिटी ओवर हियर। सो अल्फा स्क्वायर विल बी, अल्फा विल बी इक्वल्स टू Ka इंटू V, ऐसा बन जाएगा। एंड अगर मुझे अल्फा लेना है तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ Ka इंटू V। सिमिलरली यहाँ पर Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। Okay, again alpha square will be equals to Ka upon C, and if I want to calculate alpha I have to take a root of this, that is under root of Ka upon C will be equals to alpha. Okay, so this equation 5 is the dissociation, this is known as the alpha is known as the degree of dissociation। यहाँ पर ये जो alpha है that is the degree of dissociation of a weak acid, and it implies that this equation shows that this degree of dissociation is inversely proportional to the square root of concentration or it is directly proportional to the square root of the volume। Okay, have you understood this? Simple सा है, सिर्फ यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम किस तरह से लेते हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले निकाला था, वो एक इक्वेशन अगर आप माइंड में रखते हो तो यू कैन इजीली फाइंड आउट the degree of dissociation or the dissociation constant। Okay, now let us move to the dissociation constant for the weak base, मतलब Ostwald's dilution law for the weak base। Ostwald's ने आपको एक dissociation constant derive करके दिया है, that we will see। Okay, now again let us take 1 mole of base BOH in VDM cube of water। Okay, same है ये reaction। Now this BOH, which is a weak acid, it will get dissociated as B plus and OH minus। Okay, again AQ denotes the aqueous medium, मतलब reaction आपकी water में हो रही है। Okay, now the the dissociation constant क्या बन जाएगा इसमें, KB बोलेंगे हम इस पे dissociation constant को। वो क्या बन जाएगा, it is nothing but the ratio of the product of concentration of the product। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है B प्लस और OH माइनस, तो ये दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम, डिवाइड बाय द concentration of the reactant। तो यहाँ पर reactant है हमारा BOH, तो डिवाइड बाय द concentration of reactant BOH। अब since in this case also we have taking 1 mole of BOH, मतलब initial concentration है इसका 1 और
कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया हमने, VDM³ ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी वीक एसिड, सो इट विल डिसोसिएट टू अ वेरी लेस एक्सटेंट। इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग ले लेते हैं अल्फा, लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फॉर दिस बेस। तो जो मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रहे, मतलब जो कि डिसोसिएट नहीं हुए, वो कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा। स्टार्टिंग में हमने 1 मोल लिया था BOH का, अल्फा उसमें से डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा डिसोसिएट होने के बाद कितने नहीं हुए डिसोसिएट, 1 माइनस अल्फा। So the fraction of the base that remains undissociated would be 1 minus alpha. तो पहले हम सभी के कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH विल बी, अभी मैंने बताया आपको कॉन्सेंट्रेशन हमको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे BOH के 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हुआ, और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हम लोगों ने क्या कहे हैं, इट इज 1 माइनस अल्फा। Therefore concentration of BOH will be 1 minus alpha upon V. Similarly concentration of B plus and OH minus, ये क्या हो जाएंगे, अल्फा अपॉन V। अब क्यों ऐसा लिया मैंने अल्फा अपॉन V, क्योंकि 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हुए, मतलब अल्फा मॉलिक्यूल्स B प्लस के बने हैं और अल्फा मॉलिक्यूल्स OH माइनस के बने हैं। आई शुड नॉट से मॉलिक्यूल, अल्फा आयंस B प्लस एंड अल्फा OH माइनस। तो अब इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो अगेन इट विल बी अल्फा मोल्स अपॉन द वॉल्यूम। सो अल्फा अपॉन V विल बी द concentration for B plus as well as for the OH minus. Now let us substitute all this in this equation. जो equation थी हमारी, Kb is equals to concentration of B plus into concentration of OH minus upon BOH. Let us substitute in this. So it will again become alpha upon V into alpha upon V upon 1 minus alpha upon V. It's same as that of the dissociation constant or weak acid. Same चीज है। फिर ये हो जाएगा again alpha square upon, ये दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू V विल बी V स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाना है तो इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, सो V ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, so it will become into V upon 1 minus V. Now अब V and V will get cancel, so in this case here 1V and this square का ये जो square है वो cancel हो जाएगा, so alpha square upon V into 1 upon 1 minus alpha बचेगा। So this will be alpha square upon 1 minus alpha into V. Okay, again अगर हम C को लेते हैं कि C अगर concentration है तो C will be equals to number of moles है 1 divided by volume, तो volume था V, so C will be equals to 1 upon V, and if we keep this 1 upon V in place of C, then we will get, okay, again this 1 upon V is C, so alpha square C upon 1 minus alpha. In this case also, since the base is very weak base, it will dissociate to a very less extent, therefore 1 minus alpha is very small, therefore 1 minus alpha can be taken as nearly equal to 1 only. So keeping this 1 minus alpha as 1, we get Kb is equals to alpha square C और Kb is equals to alpha square upon V. तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन जाएगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की, Kb is equals to alpha square upon V और Kb is equals to alpha square into C. दोनों रिएक्शन सेम है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस आर एग्जैक्टली द सेम. The only difference is the dissociation constant for weak acid is denoted by Ka and the dissociation constant for weak base is denoted by Kb. सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में कि इनके dissociation constant को हम Ka और Kb से डिनोट करते हैं. अब इसी इक्वेशन से we can find out the degree of dissociation alpha. So alpha will be equals to under root of Kb upon C or alpha will be equals to under root of Kb into V. Again, this equation also implies the same thing, that the degree of dissociation for a weak base is inversely proportional to the square root of concentration and directly proportional to the square root of the volume. Okay, so this is the Ostwald's dilution law. This was the Ostwald dilution law. Very simple law. Only you have to remember the equilibrium constant. Okay, equilibrium constant की equation अगर आप law of mass action आपको याद है, equilibrium constant की value Kc किस तरह से आता है ये आपको अगर पता है तो you can easily derive the Ostwald's dilution law. Now let us take one numerical on it.
a weak monobasic acid is 0.05% dissociated. मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक weak acid दिया हुआ है, weak acid get dissociated into 0.05% in 0.202 मोल solution. मतलब हमें concentration भी दिया हुआ है और हमें अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया हुआ है, and it is asked to calculate the dissociation constant. Okay, so यहाँ given क्या है, degree of dissociation 0.05%, concentration 0.02 molar, and we have to find out the dissociation constant. Now since this is a weak acid, dissociation constant will be called as Ka. अब we know that Ka is equals to अल्फा स्क्वायर सी, ये हमारा इक्वेशन था, अभी हम लोगों ने निकाला Ka is equals to अल्फा स्क्वायर सी. अब यहाँ हम अल्फा स्क्वायर अपॉन बी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है. एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन Ka एंड अल्फा एंड सी, इट इज एज Ka is equals to अल्फा स्क्वायर सी. So Ka is equals to alpha square c. Now we know that alpha is 0.05%. अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हमें पहले उसे नॉर्मल कन्वर्ट करना होगा, मतलब परसेंटेज हमें हटाना होगा, बिकॉज परसेंटेज में हमने कैलकुलेट नहीं किया था, हमने जब डिराइव किया था तब हमने अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में नहीं ली थी. तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज. नाउ in order to convert this percentage we have to divide it by 100. okay, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब हमें परसेंटेज को हटाना है तो वी विल नीड टू डिवाइड इट बाय 100. तो यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.05 डिवाइड बाय 100. अब 0. इसको कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख दूंगी. नाउ 0.05 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 into 10 raised to the power -2. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 10 raised to the power 2 plus 2. ठीक है, नाउ ये 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10 raised to the power -4. तो आंसर आ गया हमारा 5 into 10 raised to the power -4. ओके, नाउ लेट अस कीप दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस. So Ka will be equals to 5 into 10 raised to the power -4 the whole square into C. C की वैल्यू है आपकी 0.02. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हमें क्या करना है, 5 का भी स्क्वायर लेना होगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 into 10 raised to the power -4 into 2 is -8 into 2. अब इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, उसको भी सिंपल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 2 into 10 raised to the power -2. क्योंकि जितने भी डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन है अगर हम उन्हें पहले से ही कन्वर्ट कर दे तो इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट. अब सिर्फ हमें क्या करना है, 25 into 2. 25 into 2 is 50. अब 10 raised to the power -8 into 10 raised to the power -2. Okay, so in this case base is the same, index are different, so we are going to add them. और मल्टीप्लीकेशन साइन है बीच में तो हम इंडेक्स को ऐड करेंगे. सो -8 plus -2 इट विल बिकम -10. सो 50 into -10 विल बी द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. और अगर ये 50 में से मैं ये एक जीरो को हटा देती हूँ तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, -9. सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 5 into 10. So 1 plus 1 and -10 will become -9. So Ka can be also written as Ka is equals to 5 into 10 raised to the power -9. यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट को कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट इज देयर फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन एज अल्फा स्क्वायर इनटू सी. ओके, इसी तरह से अगर हमें कभी Ka की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, एंड if the degree of dissociation is asked, then we can use this formula again to find out the dissociation constant. Okay, so hope you all have understood. सिर्फ सिंपल इसमें हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही देखा है इस वीडियो में, एंड इट इज क्वाइट सिंपल. यू नीड टू टेक अ पेन एंड पेंसिल while watching this video. जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप पेन पेंसिल लेके अगर फिर से आप ये वीडियो को देखोगे और साथ साथ में करने की कोशिश करोगे ये डेरिवेशन, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. ओके, so try to do it with me only, means while watching the video try to do it with yourself, so it will be easy for you to understand the derivation. Okay, so hope you all must have understood this topic, and in the next topic we will move ahead and we will see about the pH, then the relation between pH and pOH,
and the different topics, hydrolysis of the salt and so on, of other topics of this chapter. Okay. So if still you have any query, you may ask me in my comment box. Until then, thank you. Bye bye.